Hello student, good morning. Today we will study Vista's fourth chapter, The Enemy. This chapter is written by P.S. Buck. She was an American writer and novelist. Student, this lesson, The Enemy, set in the World War. And we already knew about the World War. In this lesson, there is a doctor whose name is Sadao. Sadao was a Japanese doctor and he had completed his study in America. And America and Japanese are the enemies. वो दोनों दुश्मन countries है. The doctor Sadao, who completed his study in America and doing his practice or whatever, he is a doctor in Japan. So during the World War, he had helped and saved the American soldier. तो ये तो अगेंस्ट हुआ एनिमी के कंट्री को, कोई भी सोल्जर को हेल्प करना. सो एज अ सिटीजन इट इज़ एन इलीगल एक्ट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉट एन इलीगल एक्ट. And first of all, we are human being. So humanity should be there. And later, we are the citizen of any country. Introduction before you read. It is the time of the World War, as I told you before. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Actually, American prisoner. He was an American prisoner. जापान में prisoner था, soldier था. He was tortured. He was injured or and Japanese prisoner. And once he escaped, found injured and unconscious at the door of Dr. Sadao. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So क्या करेगा वो? अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता दर्शाएगा कि एज अ पेट्रोइट अपनी देशभक्ति दर्शाएगा. सो ही वॉज इन अ डिलेमा, धर्म संकट में था. वॉट शुड ही डू? एज अ गुड ह्यूमन बीइंग or as a doctor, he should save a man. And as a citizen of the Japan, he should show his patriotism as a good citizen. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. Dr. Sadao, he was a doctor, Japanese doctor, and his house was on the coast. The low square stone house, this is the description about his house. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine trees. So this is about a description about his house कि कहाँ उसका घर था. तो upon the rocks well above a narrow beach, and he often played there when he was a young boy. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconut. We already knew that if we go in South India, people climb on the coconut trees with their bare feet. Bare feet, खुले पैर के साथ वो coconut पर चढ़ते. In the same manner, as a boy, Sadao used to climb the trees, pine trees. His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the further for Japan." Here, the word yonder, it means at some distance in the direction pointed. आइलैंड को पॉइंट और सम डिस्टेंस पर पॉइंट करते हुए उसके फादर बताते कि वो जो स्टेपिंग स्टोन्स है वो जापान के फ्यूचर है. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. As a young boy or as a boy, he would ask his father seriously. अपने फादर को वो सीरियसली पूछते.
जब उसके फादर उसको कहते कि दोज स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, तब वो सीरियसली पूछते कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर, उसके फादर बताते हुज नोज, कौन जानता है, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट. So whenever his father used to tell him that those stepping stones are the future of Japan, एंड सदाओ कहते थे कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि वहाँ से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, तब उसके फादर कहते थे हु नोज, कौन जाता है, बिकॉज जो फ्यूचर डिपेंड हमारे पर ही करता है, वी शेल, इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट, कि हम उसको कैसा बनाते. सो दिस इज़ अबाउट हीज पास्ट, कि उसका बचपन वहाँ पर कैसे बीता था. सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, क्योंकि उसने सब कुछ अपने दिमाग में रखा था. वाई, एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, ही डिड वॉट एवर हिज फादर हैड सेड, उसने वही किया जो उसके फादर ने उसको बताया. हिज फादर हु नेवर जॉग्ड और प्लेड विथ हिम, इसके फादर उसके साथ ना तो कभी जॉग करते थे और ना कभी खेलते थे. हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, सदाओ वॉज ओनली सन ऑफ हिज फादर, एक इकलौते सन थे, और हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, कभी खत्म न होने वाला दर्द उसके साथ वो बांटते थे, और उसने वही किया जो उसके फादर ने उसको बताया था. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, वॉट एवर ही गोट द एजुकेशन, जो भी एजुकेशन उसने प्राप्त किया था वो उसके फादर की मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न मतलब एक चिंता, मतलब उसके फादर जो है सदाओ की एजुकेशन के बारे में बहुत चिंतित रहते थे. एंड दैट इज़ वाई ही सदाओ गेव significant to his education. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. His father had sent Sadao to America to be a doctor. उसको डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पर भेजा था. And yes, finally he became the doctor. He became surgeon. सर्जरी एंड मेडिसिन, दवाइयाँ और सर्जरी के बारे में. एंड फाइनली ही बिकेम द सर्जन, वो बहुत बड़े एक सर्जन बने. ही हैड कम बैक एट 30 एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. बट अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की डेथ हो गई. वो बिना देखे, क्या उसका सपना था कि उसके बेटे को सर्जन बनते हुए देखे. एंड डॉक्टर सदाओ, he did not only become a surgeon but he became the scientist. वो सिर्फ एक सर्जन नहीं बने, साइंटिस्ट भी बने. एंड व्हेन ही बिकेम 30, डॉक्टर सदाओ जब 30 साल के थे तब वो जापान में वापस आए. बट हिज फादर हैड ऑलरेडी डाइड टू सी हिज सन एज अ सर्जन और एज अ साइंटिस्ट. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Sadao was on his way to discover a treatment for wounds which would make them absolutely clean. This was his specialty. So he was not sent abroad with the armed force as a doctor. Also he was retained in Japan because the old general was suffering from an ailment which needed to be operated upon in case of an emergency. जनरल ऑफ जापान नीडेड ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी. एंड दैट इज़ वाई सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसीलिए सदाओ को वहाँ पर जापान में रहना पड़ा. तो ये था ग्लिम्स ऑन द लाइफ ऑफ सदाओ. सदाओ की लाइफ पर थोड़ा हमने व्यू देखा. अब स्टोरी तो यहाँ से शुरू होती है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है, कौन उसके जीवन में आता है जिसकी वो जान बचाता है. एंड ही सेव्ड द अमेरिकन soldier. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched the mist hide outlines of a little island near the shore, and
then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah is wife of Dr. Sadao, his wife, would be waiting for him with the two children. Dr. Sadao had a wife, her name Hannah, and Dr. Sadao had two children. So this is the writer here describes the scene outside the Dr. Sadao's house. आउटसाइड डॉक्टर सदाउस हाउस, उसके हाउस के बाहर का वो जो सीन है वो राइटर ने यहाँ पर बताया है. As the days were unusually warm and the sea waves were cold and the nights became foggy. क्या रहता था दिन? During the day there is a warmth, then the waves were cold and nights were foggy. Dr. Sadao saw the boundary of nearby island became invisible gradually. Gradually means slowly. The island became invisible. Fog इतना था कि दिखना पॉसिबल नहीं होता था. As it got covered into the mist, और पूरा जो आइलैंड है वो मिस्ट से कवर हो जाता था. एंड स्लोली द मिस्ट वॉज कमिंग क्लोजर टू हिम, और ऐसा लगता था जैसे उसके पास वो मिस्ट आ रहा है. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब मिस्ट आता है तो हमको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मिस्ट जो है वो धरती को पूरा कवर कर लेता है. सोन देयर वुड बी मिस्ट ऑल अराउंड हिज हाउस, और पूरे उसके घर को भी कवर कर लेता है मिस्ट. एट द टाइम ही वुड गो बैक इन टू द हाउस टू हिज वाइफ. नाउ व्हेन ही सो दैट द मिस्ट हैड कवर्ड his house, he went into the house. Hannah, who was waiting for him along with their two children. And here Hannah, his wife, was waiting for him with their two children. But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen haori over her kimono and haori are the kind of Japanese garment. Here the word haori means loose outer garment worn over the kimono, and kimono means a traditional Japanese garment. So Hannah wore such kind of clothes. She was in traditional Japanese cloth, dark blue woolen haori over her kimono. She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing. So here she came and put her arm through his as he stood. जैसे वो खड़ी थी वहाँ पर उसने उसके आर्म जो था वहाँ पर उसके प्यार से उसको गले लगाया. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. Actually, Dr. Sadao and Hannah met in America, but Dr. Sadao was waited to fall in love, क्योंकि वो श्योर करना चाहते थे कि वो हना जो है वो जापानीज है कि नहीं. And when he became sure and when he came to know that Hana is Japanese, he fell in love with her. His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसकी जाति, रेस मतलब वो जाति, उसके फादर ने उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक उसको पता नहीं चल गया कि वो प्योर जाति से है. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, and at an American professor's house. So he wondered that had he not met her, he would not have got a wife all his life. कि अगर वो प्रोफेसर के हाउस पर वो हैना को मिला नहीं होता तो शायद he would not have got a wife all his life, कि शायद उसकी जीवन में कोई पत्नी होती ही नहीं. He thought that the professor and his wife were kind as they were keen to help foreign student, कि वो उसके भी एक ग्रेटफुल है, थैंकफुल है प्रोफेसर उसकी वाइफ के कि एक जापानीज सिटीज़न को उसने उसको इतनी हेल्प की. He was glad, Sada was happy that they had accepted this kindness and went to their house.
बिकॉज इट वॉज देयर दैट ही हैड मेट हना। प्रोफेसर के हाउस में इसलिए जाता था बिकॉज ही कुड मेट हना, कि वो हना को मिल सके। सदाओ वुड ऑफन टेल हना that it was a mere coincidence that he went to the professor's house that night, as the room in his house were small. The food was not good and the professor's wife was very talkative. If he had not gone there that night, he would not have met Hannah. अगर उसकी फूड भी गुड नहीं था और रूम वॉज स्मॉल एंड प्रोफेसर वाइस वॉज टॉकेटिव, बट अगर वो वहाँ पर नहीं जाते तो वो हना से मिलते नहीं। एट दैट टाइम हना वॉज अ न्यू स्टूडेंट। सदाव हैड थॉट दैट ही वुड लव हर इफ एट ऑल इट वुड बी पॉसिबल फॉर हिम। एंड द नेम ऑफ प्रोफेसर वॉज प्रोफेसर हार्ली। और उसके घर वो जाते ही, रूम छोटा था, खाना भी अच्छा नहीं था, एंड हियर ही मेट हैना। बट यहाँ पर वो सोचते कि एंड इफ हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। अगर वो वहाँ पर वो सोचते कि हैना अगर जा पाने से तो वो उसको प्यार हो जाएगा और वो पॉसिबल हो सकता है। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Now जब वो रूम में जाता है, हैना उसके हाथ में हाथ रखती है, तब वो फेल्ट करता है, एक अच्छी सी फीलिंग उसको आती है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। उसकी शादी कई साल पहले हो गई है, 2 बच्चे भी है, फिर भी उसको इतनी खुशी मिलती है, फीलिंग्स अच्छी आती है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। वहाँ पर अमेरिका में प्यार तो हुआ था, बट दे डिड नॉट गेट मैरिड देयर। वहाँ पर उसकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी वहाँ पर नहीं की थी। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। दे फिनिश देयर स्टडी देयर, स्कूलिंग देयर। After completed the education, they came to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. जब उसके फादर ने हैना को देखा, एक्सेप्ट किया, उसके बाद ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे से उन दोनों की शादी हुई थी। Although Shadao and Hannah had talked everything over beforehand, भले ना उन्होंने दोनों ने कैसे करेंगे, कैसे शादी होगी, वॉट एवर फ्यूचर कैसा होगा, उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, फिर भी पापा की सहमति के बिना उन्होंने शादी नहीं की थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी एंड दिस टाइम हैना एंड सदाओ आर परफेक्टली हैप्पी। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म्स। एंड यहाँ पर सिचुएशन ये ऐसी है कि पहले उसका हाथ उसके पति के हाथ में देती है, उसके बाद उसका चिक जो है उसके अगेंस्ट, चिक मीन्स उसके चिक पर वो अपना चिक रखती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम शो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। बोथ हैना एंड सदाओ शो कि मिस्ट में से कुछ ब्लैक जो है उसको आता हुआ दिखा। इट वॉज अ मैन। और वहाँ पर वो कौन था? इट वॉज अ मैन, ह्यूमन बीइंग था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशंस, फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। द आउटलाइन of a man's body was visible in the mist. He walked unsteadily with his arms above the head. It was an indication that he was a prisoner. और वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कैदी है। The man walked a few steps and then disappeared in the mist. कुछ कदम वो चलता है और वहाँ पर वो अदृश्य हो जाता है मिस्ट में। Who's that? हना cried, चिल्लाती है, कौन है वहाँ पर? She dropped Sadao's arm and they both leaned मतलब झुकना, over the railing of the veranda. Railing मतलब a barrier and horizontal bar जो होता है, वहाँ से वो आगे वरंडा की तरफ आगे बढ़ते हैं। Now they show him again. फिर से उसको देखते हैं, क्योंकि मिस्ट था तो क्लियरली दिखना पॉसिबल नहीं था। The man was on his hands and knees crawling and that man was crawling. अपने हाथ और नी के बल पर वो रेंग रहा था।
देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। वहाँ पर वो फिर से वो गिर जाता है, अपने मुंह के बल पर वहाँ पर वो गिर जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज हम हमारा लेसन रख रहे। हमने इस लेसन में देखा कि डॉक्टर सदाउस हाउस इज़ ऑन आइलैंड, और वहाँ पर वो बीच के वहाँ पर स्टोनी जो एरिया है वहाँ पर उसका घर है। पाइन ट्री के स्क्वायर मतलब उसका घर जो है वो पाइन ट्री के साथ कवर किया हुआ है। और उसके फादर के जैसा फादर ने कहा वैसा ही वो बने हैं अपने जीवन में। एजुकेशन भी अपने फादर की विश के अकॉर्डिंग उसने पूरा किया है। उसका एजुकेशन अमेरिका में पूरा हुआ है। एंड ही इज सर्जन एंड साइंटिस्ट। He completed his study in America. He went there when he was 20 and returned when he was 30. उसकी शादी जो हैना है उसके साथ हुई है, और उसके 2 बच्चे भी है हैना, और वो दोनों अमेरिका में मिले थे प्रोफेसर हालिस के घर। दे केम बैक टू जापान। वहाँ पर उसकी शादी नहीं हुई, भले ना प्यार हो गया, शादी नहीं की। उसके फादर की विश के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पूरा हुआ। उसके फादर को जब श्योर हो गया व्हेन ही एंश्योर के द गर्ल इज़ फ्रॉम प्योर रेस, एंड लास्ट में उसकी शादी जो है जापानीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसकी शादी होती है। उसके 2 बच्चे भी है, लाइफ पूरी सेटल है यहाँ। ही इज़ गुड सर्जन। और यहाँ पर एक दिन वो एक इंसान को देखते हैं जो ओशंस पर तैरता हुआ आता है, रेंगता है और मुंह के बल पर गिर जाता है। यहाँ तक स्टोरी हमारी हम रखते हैं। वी विल स्टडी द फर्दर लेसन एंड नेक्स्ट पार्ट। ओके, टुडे आई एम गिविंग यू one question in homework. The question is, who was Sadao? Where was his house? आपको घर पर चैप्टर भी रीड करना है। अगर ज़रूरत हुई तो ही ये चैप्टर स्कूल ओपन होने के बाद एक्सप्लेन होंगी, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं होंगी। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल एंड स्टडी द चैप्टर, रीड द चैप्टर। और जो भी वॉट एवर द होमवर्क आई एम गिविंग यू, प्लीज़ सेंड मी द होमवर्क in WhatsApp or email. Thank you and have a nice day.